My greetings to everyone on this my effort of launching a thrice a week news channel at 4 p.m. on Monday, Wednesday and Friday. So the greeting is normally I prefer Guru Gobind Singh's greeting to everyone. Why Guru? Why Guru Sikhs, why they greet? Because it comes from Hindu tradition of greetings from 4 different yug. Guru Gobind Singh Ji found out, and I got it from Institute of Sikh Studies in Mohali, Chandigarh, that in Satyug, the greeting used to be Vasudev, Vasudev. Vasudev is Krishna, and I am also Sudarshan, indirectly. Sudarshan, Krishna Chakra. So, Treta Yuga, it came to Hari Hari. Then, after some time, say 1500 years, so another yuga starts. 5000 years, this is as per Brahm Kumari. 1250 years for each yuga. So, in Dwapar Yuga, it was Govind Govind. And now we are in Kali Yuga, fag end of Kali Yuga. Brahm Kumaris call it Sangam Yuga. So it is Ram Ram. So Guru Gobind Singh Ji, what he did was, he combined the 4 greetings and made one greeting for Sikh people to follow. Vasudev, Hari, Govind, Ram. Vahe Guru. So my Vahe Guru to everyone. Now let me straight come to this point. I'm sure it will shock you why I am using such strong words for Indians, whole of India. Why should I name my channel as We the Idiots of India? Well, the inspiration actually comes from, I lie down because I'm 74 years and I'm not well, I'm unwell. So, some asthma problem, breathing problem. So I'll keep talking like this. So it's very natural for you to get upset, angry, frustrated and ask me why at my age, I'm 74 years, 5 months and 26 days now. On 7th of July, I'll complete 6 months. So in a way, I'm elder to Modi ji. I don't want to compare, he's not the reference, but just people, because people know him, so from that angle, I always try to tell that I'm elder to him by 7-8 months. I think he will be 74 on 16th September. I was already 74 on 7th January. So I come to that answer. Why and how did I choose this name, We the Idiots of India? Why do I call people idiots? Like 74 years have passed and I don't want to be nasty and I want to now speak the truth before I depart from this world. Time has come to speak the truth. My truth. I follow truth. But I follow my truth. And incidentally, my truth also keeps on changing. मेरा सच भी तो बदलता रहता है. So I always say 3 things about my truth. I follow truth, I follow my truth, I follow my latest truth. And my truth of this within half an hour can change. And you may ask me कि sir आधा घंटा पहले तो आप ये कह रहे थे. तो मेरा simple logical answer रहेगा, yes, I've changed my mind within half an hour. We evolve. So let me give you starting point कि मैं idiots कहाँ से और क्यों use किया है. You see, my immediate inspiration obviously comes from Constitution of India, the first sentence, where all the power lies in the first sentence, which is
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और मैंने इसको थोड़ा सा फनी तो नहीं बनना चाह रहा, बिकॉज विद सॉरो एंड ग्रीफ आई यूज सच वर्ड्स। आई हैव नो राइट टू कॉल एनीवन। मैं जब भी किसी को बुरा कहूँगा तो 3 उंगलियां मेरी तरफ जाएंगी, 30 उंगलियां मेरी अपनी तरफ जाएंगी। मेरे में 30 गुना ज़्यादा बुराई है। बट कड़वी सच्चाई तो यह है कि हम मूर्ख हैं, मैं भी मूर्ख हूँ। एंड सिर्फ मैं इंडिया के लोगों को इडियट्स क्यों कहता हूँ, पूरी दुनिया को भी मैं इडियट बोलता हूँ। पूरी दुनिया भी इडियट्स है, इडियट से भरी हुई है, मूर्ख है हम सब। अब क्या है उसका मैं रीज़न देता हूँ, लॉजिकल, एंड देन यू डिसाइड। सो पहले मैं दुनिया का प्रूव करूँ या इंडिया का प्रूव करूँ? दोनों कर सकता हूँ। चलिए मैं दुनिया से शुरू करता हूँ कि दुनिया के लोगों को मैं मूर्ख क्यों कहता हूँ। ये शुरू होती है मेरी जो नॉलेज की डिस्कवरी आज से 15-20 साल पहले। नासा की एक गया था जुपिटर, बृहस्पति ग्रह पे, और वहां से उसने धरती की छोटी सी एक मतलब फोटो भेजी थी, और धरती बहुत छोटी टिमटिमाता वो तारा लग रही थी, छोटी सी धरती। एंड यू नो जुपिटर, यू नो, नहीं तो गूगल कर लीजिए, सारा ढूंढ लेंगे। धरती से 700 गुना ज्यादा बड़ा है। तो हमारी धरती को बृहस्पति ने बचा रखा है, क्योंकि 700 गुना चुंबकीय शक्ति है। तो ब्रह्मांड का सारा कूड़ा करकट वो अपनी तरफ खींच लेती है, इट्स ए ह्यूज मैग्नेट। तो धरती बची रहती है। धरती में एटमॉस्फेयर, जीवन कहाँ से आया? अब इसके साथ दूसरी चीज़ अगर आपको बताऊं कि ये तो एक सोलर सिस्टम है हमारा, 9 ग्रह हैं। साइंस के पास आज ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि उन्होंने ऐसे सैकड़ों ग्रह, हजारों, लाखों, मेरे हिसाब से करोड़ों ग्रह देख चुके हैं वो। ग्रह भी क्या, सूरज, ऊपर जितने टिमटिमाते तारे सूरज हैं। सो वो गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे है। और साइंस अभी तक ये बोलती है, नासा ये बोलती है कि कहीं पूरे इस यूनिवर्स में या मल्टीवर्स में करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हैं, कितने लाइट ईयर्स हैं, कहीं जीवन नहीं है। जीवन हमारी इस धरती पर है। और ये धरती को जब बृहस्पति से मैंने उस फोटो को देखा और मैं सोचना चालू हुआ कि हे भगवान, इतनी छोटा हमारा एक बिल्कुल स्पेक जैसे एक कण होता है, यूं धरती टिमटिमा रही है। अब इस पे जब जीवन मिला है, करोड़ों अरबों में जीवन नहीं है, तो क्या हम सौभाग्यशाली नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं, लाइफ है। और अब मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अकेला, आप देख सकते हैं मैं बहुत सिंपल ढंग से अब रहता हूँ। तो मैं पूरी दुनिया को मूर्ख क्यों कहता हूँ? मेरा सिंपल रीजन ये है कि हमने इस छोटी सी टिमटिमाती हुई धरती को हमने क्या हाल किया। हम इंसानों ने बेसिकली क्या हाल किया। दूसरे प्रजातियों को दोष नहीं दे सकते। वी कांट ब्लेम अदर स्पीसीज। जो मुझे अंदर से गुस्सा आता है, मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा है इन चीज़ों का, बहुत गुस्सा है। बट क्योंकि मैं भी इस धरती का हिस्सा हूँ, इस दलदल में, इस नर्क में मैं पड़ा हूँ। नर्क है ये, जिसको इतना अच्छा हमें जीवन मिला है। वो मदर इंडिया का एक गाना है, लिंक भेज दूंगा मैं नीचे। इस दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पर क्या जीवन एक जहर है क्या सच में? अभी बताता हूँ, पर पहले मैं अपना थॉट बता रहा हूँ। मेरे थॉट्स का फ्रेमवर्क क्या है कि हमने इस टिमटिमाती हुई छोटी सी धरती में सबसे बड़ा क्राइम क्या किया, अपराध किया, अनफॉरगिवेबल, कि इसको हमने 200 देशों में डिवाइड कर दिया। 200 से ऊपर देश हैं, 225, झंडे बना दिए। तो उन देशों में मैं भी एक देश में पैदा हूँ जिसको मैं भारत कहता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से भारत रियलिटी में ना था ना है। मतलब ये आपको फिर सुन के धक्का लगेगा कि इंडिया एक इल्यूजन है, इंडिया कोई वास्तविकता नहीं है। मैं अभी आऊंगा इस बात पे। तो इतने झंडे बना दिए और जितने देश हैं वो सब अपने झंडों को महान कहते हैं। मेरा भारत महान। भाई क्यों? नेपाल महान नहीं है, भूटान महान नहीं है, अफ्रीका महान नहीं है, अमेरिका महान नहीं है। हर देश अपने को महान कहते हैं। तो हमें क्या हक है? और हम तो पता नहीं क्या क्या। मैं छोड़ो, मैं काम की बात पे आता हूँ। इस
जीवन का, इस धरती का, जिसमें करोड़ों अरबों प्लैनेट्स में कहीं कोई जीवन नहीं है, हमने इसका बुरा हाल कर रखा है, इतना बुरा कर रखा है जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो हम सारी दुनिया के लोग मूर्ख हैं, मूर्ख, महामूर्ख हैं। एटम बम बना दिए, एक दूसरे पे मिसाइलें चला रहे हैं, कभी पुतिन यूक्रेन को अटैक कर लेता है, कभी अमेरिका इजराइल के थ्रू पैलेस्टीनियन बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। तो मूर्ख है ना हम लोग, बहुत मूर्ख हैं, बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं, पूरी दुनिया के लोग मूर्ख हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं कोई इडियट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट इडियट एक माइल्ड वर्ड है। गंदी से गंदी गाली भी लोगों को दो तो कम है। कि क्या इसलिए तुम्हें परमात्मा ने जीवन दिया है कि ये सब कुछ करो? देश बना दो 200, हर देश को फिर अलग हिस्सों में बांट दो। हमारे इंडिया का ही ले लो, प्रदेशों में बांट दो, उससे भी चैन नहीं पड़ा तो डिफरेंट धर्म बना दिए, नफरत करना सिखा दी, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा लो। अब प्रदेशों में भी फिर आप जानती हैं, शहर शहर हर आपको धीरे धीरे पता होगा, धीरे धीरे। तो अब आप समझ गए कि मैं वी द इडियट्स ऑफ इंडिया, मैं वर्ल्ड पे अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया को मेरा हक नहीं है। मैं अपने देश के बारे में कुछ कह सकता हूँ, दूसरे देशों में मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं है। एक सेकुलर की परिभाषा भी है कि मैं दूसरे धर्मों को क्यों बुराई निकालूं। मुझे अगर कुछ करना तो मैं अपने ही धर्म को चेंज करने की, बदलने की कोशिश करूं। सो माई डेफिनेशन ऑफ ए सेकुलर इज कि फॉलो योर ओन फेथ पाथ। मेरा कोई फेथ नहीं है। मुझे अभी भी लोग पूछते हैं जहाँ मैं रहता हूँ सब यहाँ पे, मैं कहता हूँ मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई जाति नहीं। मैं ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ, आप देखते हो कि मंगल ग्रह से आया हूँ मैं। तो ये मेरा फ्रेमवर्क है। अब मैं इंडियंस को इडियट क्यों बोलता हूँ उस पर मैं अभी सेकंड रिकॉर्डिंग में आता हूँ, थोड़ा सा गैप लूंगा। ओके, 12 मिनट हो गए हैं, मैं इसको पहले डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। अभी मैं ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट करूंगा 10-12 मिनट के, 25 मिनट पूरे करूंगा, फिर हम वेडनेसडे को फिर मिलेंगे। आपको मेरी अच्छी लगती है तो थोड़ा फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू।